چینی وزیر اعظم کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کے ساتھ اہم ملاقات، دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے نیو گوادر ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کر دیا۔ چینی وزیر اعظم کا پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتے رہنے کا عزم۔ ایس سی او اجلاس میں شرکت کے لیے مزید غیر ملکی وفود کل اسلام آباد پہنچیں گے۔ وزیر اعظم کی جانب سے عشائیہ دیا جائے گا۔ سمٹ کا باقاعدہ آغاز 16 اکتوبر کو ہوگا۔ وزارت خارجہ نے تفصیلات جاری کر دیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کل ڈی چوک پر احتجاج کی تیاریوں کا جائزہ، رہنماؤں کو ذمہ داریاں سونپ دیں۔ اسرائیلی جنگی جرائم میں اضافہ، جبالیہ میں ایک اور اسکول پر بم برسا دیے، متعدد فلسطینی شہید اور زخمی۔ شیخ رضوان میں بھی اسرائیلی بمباری سے 8 فلسطینی شہید۔ لاہور کے نجی کالج میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کی تحقیقات، پولیس نے بیسمنٹ کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی۔ برازیل میں ہونے والے سیلنگ مقابلوں میں پاکستان نیول اکیڈمی کی سیلنگ ٹیم کی شاندار پرفارمنس، چاندی کا تمغہ جیت لیا۔ اور ویمن T20 ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان ٹیم کو ہرا کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔ 111 رنز ہدف کے تعاقب میں پاکستان ویمن ٹیم 54 رنز پر ڈھیر۔ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس سے پہلے پاک چین دوستی کا بے مثال مظاہرہ، چینی وزیر اعظم کی اسلام آباد میں نیو گوادر ایئرپورٹ کی تکمیل کی ورچوئل تقریب میں شرکت۔ لی چیانگ نے واضح کر دیا، پاکستان کی ترقی کے لیے چین کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گوادر کو علاقائی ترقی کا محور ہونے کے ساتھ دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی کا عکاس قرار دے دیا۔ دونوں ملکوں میں انسانی وسائل کی ترقی، اطلاعات و مواصلات کے شعبوں میں تعاون، آبی وسائل، سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چین کے وزیر اعظم کی اسلام آباد میں وفود کی سطح پر ملاقات، اقتصادی راہداری کے تحت پاک چین تعاون نئے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ پاک چین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو وقت کے ساتھ تقویت مل رہی ہے۔ دونوں رہنماؤں کا اظہار اطمینان چینی صنعت کی پاکستان منتقلی اور سرمایہ کاری بڑھانے پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک علاقائی اور عالمی اہمیت کے مسائل اور کثیر الجہتی فورمز پر قریبی مشاورت جاری رکھیں گے۔ چینی وزیر اعظم کا پاکستان آمد پر پرتپاک استقبال، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء نے نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا۔ معزز مہمان کو توپوں کی سلامی۔ لی چیانگ کی وزیر اعظم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر پیش، دونوں ملکوں کے ترانوں کی دھنیں بجائی گئیں۔ چینی وزیر اعظم نے یادگاری پودا بھی لگایا۔ تقریب میں آمد پر چینی وزیر اعظم کا آرمی چیف سے بھی مصافحہ۔ اسلام آباد شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کی پہلی بار میزبانی کے لیے تیار، شہر بھر کو پھولوں اور روشنیوں سے سجا دیا گیا، سڑکوں پر ثقافتی رنگوں کی بہار۔ کانفرنس کل اور پرسوں 2 روز تک جاری رہے گی۔ شہر اقتدار میں سیکیورٹی کے لیے 10,000 اہلکار تعینات۔ پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار کرنے کی دھمکیاں دینے والے بھارت کے وزیر خارجہ بھی کل پاکستان آئیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ کسی بھی بھارتی وزیر خارجہ کا 9 سال بعد پاکستان کا دورہ ہوگا۔ آخری بار سشما سوراج دسمبر 2015 میں پاکستان آئی تھیں۔ SCO کانفرنس میں مودی آتے تو اچھا ہوتا، نواز شریف نے بھارت سے اچھے تعلقات بحال ہونے کی امید ظاہر کر دی۔ معروف بھارتی صحافی برکھا دت کی لیگی صدر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت، نواز شریف کے وزارت عظمیٰ کے دور کی یادیں تازہ کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کل ڈی چوک پر احتجاج کی تیاریوں کا جائزہ، رہنماؤں کو ذمہ داریاں سونپ دیں۔ کارکنوں اور قیادت میں بانی PTI کی صحت کے حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے۔
बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। वजारत दाखिला ने बैरिस्टर गौहर को बाहनी पीटीआई से मुलाकात की यकीन दहानी कराने की तरदीद कर दी। मोहसिन नकवी ने पीटीआई चेयरमैन को सिर्फ दरख्वास्त का जायजा लेने का कहा। SCO कॉन्फ्रेंस के बायस तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी आयद है। किसी एक कैदी को इजाजत दोहरे मयार के जुमरे में आएगी, तर्जुमान की वजाहत। हुकूमत को पीटीआई रहनुमाओं की बानी से मुलाकात कराकर एहतजाज का उज़र खत्म कर देना चाहिए। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का अपनी हुकूमत को मशवरा। पीटीआई से भी एहतजाज मौखर करने का मुतालबा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा खात्म। जुमेरात को ज़ेली कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इजलास में पीटीआई की मजीद वक्त देने की तजवीज़ मुस्तरद। अवामी नेशनल पार्टी ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की मुखालफत कर दी। मीसा के जमहूरियत के कई वादों पर अमल ना कर सके, क्या जेल में बैठे शख्स की वजह से अपनी कायद बेनजीर का वादा भूल जाएं? बिलावल भुट्टो ने बीबी का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है का नारा लगा दिया। इंसाफ के निज़ाम को नाइंसाफी का निज़ाम करार दे डाला। वाज़ेह कर दिया जमहूरी और आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग अदालत ज़रूरी है। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान से दोबारा मुलाकात करेंगे। इस वक्त शेयर किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी, तो उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान का 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेफाक राय के करीब पहुंचने का दावा। अवामी मुफाद के खिलाफ कोई कदम न उठाने की यकीन दहानी। इत्तेफाक राय ना हुआ तो तरमीम मुस्तरद कर देंगे। कल बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। JUI सरबराह ने हिकमत अमली बता दी। पीपल्स पार्टी के वफ्द की MQM के रहनुमाओं से मुलाकात। मुत्तहदा ने 26वीं आईनी तरमीम में बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने की शिक शामिल करने की तजवीज़ दे दी। जियाले रहनुमाओं का क़यादत से मशावरत के बाद जवाब देने का वादा। सिंध हाई कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जब तरमीम ही नहीं हुई तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? तरमीम से पहले कैसे तयन करें कि तरमीम कानून के मुताबिक है या नहीं? चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी के रिमार्क्स। पेशावर हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी, रहनुमा तहरीक इंसाफ आलिया हमजा और सनम जावेद की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। दरखास्त गुजारों को मुतालिका अदालतों में पेश होने का भी हुक्म। सिंध हुकूमत ने कराची में गुज़श्ता रोज मुजाहिरीन पर तशद्दुद के वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर दाखिला की IT सिंध को शफाफ तहकीकात यकीनी बनाने की हिदायत। मुजाहिरीन से बदतमीजी करने के इल्जाम में SHO ईदगाह समेत 8 पुलिस एहलकार मुअत्तल। सिंध हुकूमत ने काश्तकारों की इमदाद के लिए बेनजीर हारी कार्ड मुतारिफ करा दिया। 25 एकड़ तक के काश्तकारों को नकद इमदाद और नरम शराइत पर कर्जे मिलेंगे। वजीर आला सिंध का वादा। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से सिक्योरिटी गार्ड की ज्यादती की अफवाह पर तलबा मुश्तइल। कॉलेज में तोड़ फोड़ के बाद आग लगा दी। पुलिस से तसादुम। हंगामे में 17 अफराद जख्मी। DIG फैसल कामरान ने ज्यादती की खबर झूठ करार दे दी। वजीर तालीम ने कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। लाहौर के कॉलेज में मुबैना ज्यादती का मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड गुज़िश्ता रोज से ही ज़ेर हिरासत। किसी भी बच्ची की जानिब से कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की शहरियों से मुसद्दिका इत्तला शेयर करने की अपील। कच्चे के डाकुओं की दीदा दलेरी। रहीम यार खान की बस्ती जमा नगर में घर में घुसकर नौजवान को अगवा कर लिया। DPO का पुलिस को फौरी कार्रवाई का हुक्म। नौशहरा और कोहाट में गैर कानूनी तौर पर सोना निकालने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 200 से जायद मशीनें जब्त करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए।
सोने के 4 ब्लॉक्स की नीलामी से 4 अरब रुपए से जायद की आमदनी हुई। मजीद भी नीलाम होंगे। मुशीर एंटी करप्शन मुसद्दिक अब्बासी का बयान। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज। रात 12 बजे तक गोशवारे जमा कराना होंगे। मजीद तौसी का भी कोई फैसला नहीं हुआ। ज़राए FBI का मुआक्किफ, टैक्स फाइल करने वालों की तादाद 64 लाख से तजावुज कर गई। इसराइली जंगी जुनून ने पूरे लबनान को लपेट में ले लिया। ईसाई आबादी वाले इलाकों पर भी फिजाई हमले, 18 अफराद जान से गए। सहूनी फौज का हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल यूनिट हेड को शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर ड्रोन्स और रॉकेट हमले जारी। हीफा में 4 इसराइली फौजी मारे गए, 60 से जायद जख्मी। गाजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। नसीरत के इलाके में पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर बमबारी, खैमे जलकर राख, 22 फलस्तीनी जिंदा जल गए। गाजा जंग में शहदा की मजमूई तादाद 42,289 हो गई। जख्मियों की तादाद 98,684 तक जा पहुंची। गाजा में इसराइली मजालिम 1 साल से जारी हैं। मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। मुसलमान सब एक हो जाओ। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की अपील। लाहौर में फारूक नाइक और ख्वाजा सलमान रफीक के हमरा जामे अशरफिया का दौरा। भारत के बदनाम ज़माना बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीक के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। गैंग ने सलमान खान और दाऊद इब्राहिम से दोस्ती पर बाबा सिद्दीक को कत्ल किया। भारतीय मीडिया का दावा, सलमान खान से दोस्ती करने वाले को निशाने पर रखा जाएगा। बिश्नोई गैंग की धमकी। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में इजाफे पर मसनूई बारिश का फैसला। मसनूई बारिश के लिए पाक आर्मी का सेसना जहाज इस्तेमाल किया जाएगा। फिजाई आलूदगी मखसूस हद से बढ़ने पर मसनूई बारिश की जाएगी। बुखार अरब में बनने वाला हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करने के बाद डिप्रेशन में तब्दील, रुख उम्मान की जानिब हो गया। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई खतरा लाहक नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। कराची के साहिल पर पहली बार अतालवी जहाज लंगर अंदाज। अतालवी सफीर मार्लिना ने जहाज के कमांडिंग ऑफिसर और दीगर अफसरान की जानिब से ब्रीफिंग दी। दोनों मुल्कों में तिजारत $2 अरब से बढ़ाकर $5 अरब तक ले जाना हदफ करार। पाकिस्तान में चंद माह के दौरान 27 सिलेक्टर्स का तबादला। कई बार चेयरमैन PCB, कोचेज और कप्तान तब्दील हुए। बार बार तब्दीलियों से कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर नासिर हुसैन और कमेंटेटर माइकल अथॉर्टन का तबसरा। बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करने पर तनकीद महंगी पड़ी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फखर जमान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 21 अक्टूबर तक जवाब तलब। शिकागो मैराथन कीनिया के एथलीट्स के नाम। जॉन कॉरियर ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 2 मिनट 4 सेकंड्स में तय करके मेंस का टाइटल अपने नाम कर लिया। और कराची में आलमी सकाफती मेले की रौनकें। फरोख दरबार के ग्रुप ने सिंध धरती के रहन सहन को रक्स में ढाल दिया। मास्टर गुलाम हुसैन की भी शानदार परफॉर्मेंस। निघत चौधरी के क्लासिकल रक्स ने शुरका पर सहर तारी कर दिया। नए